Hello everyone. In this video, I am going to share how we can create classes and object in Java. We will create a class, define all the members like data members or the member functions. Then we will create an instance or object of that class programmatically and we will execute it. So first of all, I have to introduce something about the object-oriented programming. As we know, Java is an OOPS language and its predecessor is C++. So in C++ or you can say C++ has been called as C with classes and objects. So there are three different types of object-oriented programming languages. One is the languages which support object-oriented or object or classes like C++. There's another is called as pure object-oriented class or programming language, which is our Java is an example of that. एंड स्मॉल टॉक एक आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड एज ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो क्या डिफरेंस होता है इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? Yes, there is some difference. So first of all, we go through how the object-oriented, from where the object-oriented programming has been started. Simula is considered the first object-oriented programming language. So Simula is a language जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग जो होगी वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा. So if everything is being represented as an object is called as truly object oriented programming language. For example, Smalltalk. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि C++ में हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होते हैं, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं और स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. तो बेसिकली C++ हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है. मीन्स हम उसमें क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 फीचर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, inheritance and polymorphism, that can also be implemented using the C++ classes and objects. So it means C++ support object oriented programming method. But in Java, as I had already written that Java is considered as pure object oriented language. Yes, we know pure object oriented language means, of course, it will be follow all the 4 features of object oriented paradigm, like data abstraction, encapsulation, polymorphism, or inheritance. That is there in Java. But why it is called as a pure object oriented? Why it is not called as truly object oriented? First of all, I have to tell the difference between the object supported and pure object oriented. As C++ is a language which supported object or classes, but in Java it is object supported, but we find that the primitive data types are also having some wrapper classes. रैपर क्लासेस के थ्रू आप जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनको आप एज ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन C++ में ऐसा नहीं कर सकते. C++ में आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप 4 होते हैं, इंटीजर, कैर, फ्लोट और डबल, और यूजर डिफाइंड आपके पास हो जाते हैं जो कि स्ट्रक्चर होते हैं, क्लासेस होते हैं. सो हम अभी यहाँ पे क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं. तो क्लासेस होते हैं जो कि हमारे डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पूरे फीचर्स को फॉलो करता है. जावा में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पूरे फीचर्स फॉलो होते हैं, बट जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होते हैं और क्लासेस भी होती हैं. जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, बाइट है, बूलियन है, ये सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. अगर आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या जावा के डेटा टाइप्स के बारे में बात करनी है तो एक और वीडियो मैंने बना के डाली हुई है जावा के डेटा टाइप के लिए, मैं इसमें आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी. तो जावा के जो डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, उनमें से प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हम नॉर्मली एज ए जैसे C++ में आप यूज करते हो वैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनकी रैपर क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं.
सो रैपर क्लासेस क्या होती है, जैसे इंटीजर है, INT है, इंट का जो रैपर क्लास है वो इंटीजर रैपर क्लास है। तो आपका जो, अगर आप इंटीजर यूज करना चाहते हो, इंट मींस इंट डेटा टाइप यूज करना चाहते हो, लेकिन उस इंट डेटा टाइप को आप इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो, तो आप उसको रैपर क्लास के थ्रू यूज कर सकते हैं। जो रैपर क्लास होती है वो आप उसका ऑब्जेक्ट रेफर करा सकते हैं और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ये हम लेटर सेशंस में जरूर सीखेंगे कैसे हम रैपर क्लास के थ्रू अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। बट अभी हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो जावा होता है उसमें दो तरीके के जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जो प्रिमिटिव होते हैं उनको भी हम रैपर क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्मॉल टॉक एक लैंग्वेज है वो प्योरली ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप होता ही नहीं, उसके अंदर जो भी डेटा टाइप शुरू होता है वो क्लासेस से शुरू होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा डिफरेंस है बिटवीन दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स, so you must know. अब क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस आर नथिंग, दीज आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कॉल्ड एज क्लास। लॉजिकल एंटिटी होती है। ए क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए ब्लूप्रिंट from which you can create an individual object. Class does not consume any space. तो क्लास जो होती है वो स्पेस नहीं लेती, लेकिन क्या स्पेस लेता है? जो उसके अंदर डेटा मेंबर्स आप बनाते हो, जो आप उसके अंदर मेंबर फंक्शंस बनाते हो, वो हमारे मेमोरी के अंदर स्पेस को कंज्यूम करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स? Any entity that has state and behavior is known as an object. For example, a chair, pen, table, keyboard, bike, etc. These all are the physical and logical actually entities of a class. Like अगर आप फैन के बारे में डिस्कस करते हो तो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फैन, बट उनका फीचर एक रहेगा, उनका काम एक रहेगा। आप टेबल के बारे में बात कर रहे हो, ये टेबल स्टडी टेबल भी हो सकती थी, ये टेबल डाइनिंग टेबल भी हो सकती थी, ये टेबल कंप्यूटर टेबल भी हो सकती थी। डिफरेंट टाइप की टेबल्स हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हम उनका नाम डिफाइन करते हैं, बट वो होंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास नेम्ड एज टेबल। जैसे आपके पास बाइक्स हैं, डिफरेंट टाइप, बाइक मतलब ये टू व्हीलर का एक, टू व्हीलर एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। पेन है, ये आपका जो राइटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे डॉग है, फॉर एग्जांपल ए डॉग इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज स्टेट्स लाइक कलर, नेम, ब्रीड एटसेट्रा, एज वेल एज बिहेवियर लाइक वैगिंग द टेल, बार्किंग एंड ईटिंग एटसेट्रा। सो आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कब होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी एक स्टेट भी हो सकती है या उसका कोई बिहेवियर भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा फैन है उसका क्या बिहेवियर है? उसका बिहेवियर है कि वो चलेगा, रन करेगा तो वो इट विल गिव अस एयर। तो ये हमारा एक बिहेवियर, हमारे फैन का एक बिहेवियर हो गया। तो अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं और क्लासेस हैं, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया है। लेकिन अगर हम इसको प्रोग्राम करना चाहें, जैसे कि जावा में हमने अभी तक जो प्रोग्राम्स किए थे वो प्रोग्राम हमने किए हैं, इफ एल्स के प्रोग्राम्स हमने किए हैं, या फिर हमने सिंपल सीक्वेंस वाले स्टेटमेंट, एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल, इस टाइप के सिंपल प्रोग्राम किए। आज मैं आप लोगों को ये एक प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ जिसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, जो कि हमारी क्लास होगी, स्टूडेंट नाम होगा उसका, और उसके अंदर ये सारे फीचर्स होंगे। ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ, और इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दूंगी जो कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हमारे को एक प्रोग्राम लिखना है। क्वेश्चन है हमारा, राइट ए जावा प्रोग्राम। मेरे को ये कमेंट एंट्री में डालना है। तो इसके अंदर जो होने चाहिए, डेटा मेंबर्स भी डिफाइन किए हैं। इस क्लास का नाम है स्टूडेंट, इसके डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे ये डेटा मेंबर्स हैं। इसके अंदर कुछ मेंबर फंक्शंस हैं जो हमें यूज करने हैं इन डेटा आइटम्स को एंटर कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसको मैं कमेंट एंट्री में डालना चाहती हूँ, सो दैट कि ये हम प्रोग्राम बाद में कर सके रन। कमेंट एंट्री में डालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये कमेंट एंट्री जो होती है, मल्टीपल लाइन कमेंट एंट्री हो सकती है और सिंगल लाइन कमेंट एंट्री हो सकती है जावा के अंदर। तो मल्टीपल लाइन हमेशा स्लैश, दिस इज फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार, और आप कितनी भी लाइन्स इसके अंदर लिख सकते हैं, फिर आपको एंड करना होगा स्टार और स्लैश से। लेकिन अगर आप सिंगल लाइन एंट्री देना चाहते हो तो इट इज बीन गिवन बाय दिस डबल स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। सो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास
student having data members, roll number as integer, name as string, marks as integer, and some member function which can be used to input and output the data. So as we know, data members को हमें input कराना होगा और उनको हम display कराना चाहते हैं. तो हमारे एक programming हम करते हैं public class student. जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्लास क्रिएट करनी है हमें स्टूडेंट के नाम की, तो हमने एक स्टूडेंट क्रिएट कर लिया. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेटा मेंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंटीजर, रोल नंबर, ये एक मेरा इंटीजर है और मेरा मार्क्स भी इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे मार्क्स भी एंट्री करा देती हूँ. उसके बाद हम कहते हैं हमारा नेम, स्ट्रिंग नेम, ये हमारा नेम है. जैसे कि C++ में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई भी नेम इनपुट कराना चाहते हैं तो आपको एक कैरेक्टर की एरे बनानी पड़ती है, लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग नाम की ऑलरेडी एक इनबिल्ट क्लास होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर इनपुटिंग आवर नेम और मोर देन वन कैरेक्टर्स इन आवर सीक्वेंस और कैरेक्टर एरे यू कैन से. तो अभी कैरेक्टर एरे भी होती है, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं, मींस ए लिस्ट ऑफ और ए लॉन्ग अल्फाबेट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स और सिंबल्स, वो स्ट्रिंग होता है. मींस हम कुछ भी इसके अंदर इनपुट करा सकते हैं. ये हो गए मेरे डेटा मेंबर्स. अब हमें क्या करना है, हमें मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं. वॉइड गेट, एक मेंबर फंक्शन मैंने बनाया. मेंबर फंक्शन है तो इसकी बॉडी भी होगी डेफिनेटली, तो हम इसको क्लोज कर लेंगे. इसी तरीके से हमारे पास पब्लिक वॉइड पुट एक मेंबर फंक्शन है जो कि मुझे डिस्प्ले कराने के काम आएगा, तो ये भी मैं इसमें क्लोज कर लेती हूँ. जितने भी कर्ली ब्रेसेस हम ओपन करते हैं उतने कर्ली ब्रेसेस हमें क्लोज करने होते हैं, तो इसको थोड़ा सा इंडेंट करते हैं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन इसमें रिक्वायर होगा. string, you have to create an array, rgs, whatever name you want to take you can take, curly braces open, then curly braces end, एंड लास्ट में हमारा क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएगा. तो अभी मैंने एक ये ब्लूप्रिंट बना लिया है, मींस हमारे को कैसे कैसे अपनी क्लास डिफाइन करनी है. पहले मैंने क्वेश्चन को रीड करा, हमने देखा कि स्टूडेंट की क्लास बनानी है, तो स्टूडेंट क्लास मैंने नाम दे दिया. उसके बाद हमने डेटा मेंबर्स देख लिए कौन कौन से हैं. अब हमारे को यहाँ पे गेट एंड पुट फंक्शन को क्रिएट करना है. तो सबसे पहले हमें गेट एंड पुट हम कैसे करेंगे, पहले आपको पता ही है कि import java dot util dot scanner. This is important class or package which is available into the util package of java. तो हमें इसलिए क्यों चाहिए ये, क्योंकि हमें डेटा इनपुट कराना है यूजर से, तो हमें ये चाहिए ही चाहिए. न्यू स्कैनर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. तो ये हमारा सिस्टम डॉट इन, मतलब जो बाय डिफॉल्ट वाला इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, इन सिस्टम इनपुट जो डिवाइस होती है जैसे कीबोर्ड होता है, उसके थ्रू हमारा डेटा लेता है. अब हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज देना है हमें, एंटर योर रोल नंबर. ये मैसेज होता है, ये आपको जैसे भी आपको देना है वो दे सकते हैं, बट आप लोग क्योंकि कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें कुछ कन्वेंशंस को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि अच्छा होता है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए, अच्छा होता है. बाद में आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं. आपको मैसेजेस के थ्रू अगर आप कोडिंग करोगे तो डेफिनेटली वो आपको यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम लगेगा. तो अभी हमारे को क्या करना है, हमें मार्क्स भी इनपुट करा लेते हैं. एंटर योर मार्क्स, बिकॉज हमारी दोनों चीजें जो हैं वो इंटीजर टाइप की हैं, तो हमें इसको इजीली मार्क्स के थ्रू हम इनपुट करा सकते हैं. मार्क्स, जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे लेंगे वही वेरिएबल, आप कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं. आपको लेना था आर ले सकते थे, सिर्फ आपको सिर्फ रोल लेना था रोल ले सकते थे. बट ये आप एक बार डेटा टाइप वाली मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमने कुछ नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस किया है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ले आप कुछ भी सकते हो, यूजर डिफाइंड वर्ड है. ऐसे जो हमारा फंक्शन होता है, जैसे गेट फंक्शन लिया, आप यहाँ पे गेट डेटा नाम से भी ले सकते थे, आपकी चॉइस
चॉइस है, आप यहाँ पे जो भी लेना चाहते हैं, आप फंक्शन 1 फंक्शन 2 के नाम से भी ले सकते थे। मैंने यहाँ पे एज ए गेट लिया है, ये मेरा अपना चॉइस है, तो आप भी अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब मुझे क्या कराना है, मुझे अब यहाँ पे ये कराना है नेम की एंट्री। तो हम क्या कहेंगे, एंटर योर रोल नंबर की जगह हम लिख लेंगे नेम। थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट ज्यादातर काम आपको अपने आप करना चाहिए ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। एंड स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए जो फंक्शन होता है, जो स्कैनर क्लास का फंक्शन है, वो है नेक्स्ट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो, ये हमारा एक डेटा को डिस्प्ले कराने का एक फंक्शन हो गया, सॉरी डेटा को इनपुट कराने का फंक्शन हो गया। अब हमें इसी डेटा को डिस्प्ले भी कराना है, तो आपको क्या करना है, इसको आप एक बार यहाँ पे मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे मैसेजेस बदल देते हैं थोड़े से, क्योंकि डिस्प्ले जब होगा तो वो हमें बता रहा है, वहां पे हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे हमने कहा ये आपका रोल नंबर है, जो आपने इनपुट कराया था वो मेरा रोल नंबर ये दिखेगा यहाँ पे। और ऐसे ही हम कहेंगे आपका नेम जो है, आपने जो नेम एंट्री कराई थी वो नेम क्या है वो हम बता देते हैं, प्लस ये वेरिएबल जो है ऑलरेडी हम इनपुट करा चुके हैं यूजर से, उन्हीं की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। फर्दर और क्लासेस के अंदर हम आगे और एडवांस में इन प्रोग्राम्स को करेंगे। फिलहाल अभी हम बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग से शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग उसको समझ सकें। तो ये हमारा हो गया, मार्क्स हमने एंट्री करा दी, ये हो गया, ये हमारे डिस्प्ले हो गया। तो आपका जो लेआउट है आपको जैसे रखना है आप वैसे रख सकते हो। अगर आप इसको लेआउट को देखना, उसके बाद आप समझना कैसे ये डिस्प्ले होगा। अब जब हमारी ये क्लास डिफाइन हो गई है तो हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो क्लास है स्टूडेंट, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए और उसको एक मेमोरी एलोकेट कीजिए। यहाँ पे एक ये मेमोरी एलोकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारी मेमोरी एलोकेट होती है। तो हमने ये कर दिया s डॉट गेट और हमने s डॉट पुट, क्योंकि मेरे मेंबर फंक्शन क्या है, गेट और पुट, जो मैंने क्लास के अंदर डिफाइन किया, और डेटा मेंबर्स क्या है, रोल नंबर और मार्क्स और नेम, ये मेरे डेटा मेंबर्स हैं। अब इनको यूज करने के लिए, मुझे इनको एक्सेस करने के लिए हमें गेट फंक्शन और पुट फंक्शन बनाया, और उस गेट एंड पुट फंक्शन से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि सेव हमें क्या करना है, सेव हमें करना है विद द जावा नेम। स्टूडेंट डॉट जावा। सो ये मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसमें सेव कर देते हैं। सो इट इज आस्किंग फॉर द ओवरराइडिंग, तो ओवरराइड कर दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हमारा क्या प्रोसीजर है, अब हम जाएंगे CMD करेंगे। हम अपने जावा के प्रोग्राम का सेटअप देखते हैं, कहाँ पे हमें जाना है। हमारा ई ड्राइव में हमें जाना है, तो हमें जावा प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने अपना प्रोग्राम सेव किया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे जावा सी अवेलेबल है कि नहीं है। जावा सी है, क्योंकि हमारा जो पाथ था, मैंने एनवायरनमेंट सेट वेरिएबल के नाम से, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसके थ्रू मैंने इसको सेट किया है। तो अब आप चेक कर लो क्या यहाँ पे स्टूडेंट नाम की फाइल पड़ी है। कैसे हम सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो dir करते हैं तो आपको सारी स्क्रीन पे सारे नाम दिखा देते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ जावा के प्रोग्राम देखने हैं। तो आप क्या यूज करोगे, dir.java। तो इससे क्या होगा, सिर्फ जावा के प्रोग्राम दिखाई देंगे। अगर आपको अपने प्रोग्राम का नाम याद है तो आप सिर्फ अपने प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा ये प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट डॉट जावा के नाम से मैंने सेव किया है, तो मैं ये भी देख सकती हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करें, हम जावा सी से कंपाइल करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, क्योंकि मैंने कोई एरर नहीं डाली थी, इस वजह से ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो क्वेश्चंस मैं अभी बाद में बताती हूँ। तो अभी इसको आप इसको आप कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। जावा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, फिर आप अपना नाम डाल सकते हो, जैसे कि मैं अपना नाम डाल रही हूँ, और यहाँ पे अपने मार्क्स डालने हैं। जैसे ही आप मार्क्स डालोगे ये आउटपुट मुझे स्क्रीन पे मिल गया। सो ये हमारा तरीका होता है किसी भी एक जावा के प्रोग्राम की क्लास बनाने का, मेथड बनाने का, और उसको हमारे को सेव करने का। सो
इस क्लास के लिए इतना ही बहुत है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। So there is a question for practice. You have to write a program which will be used to create a class named as employee, and this class is having data member as employee number, name, department designation, and salary. The data type you have to decide yourself, and then you have to create the get and put data on screen. Either it will be getting from keyboard, data input from keyboard, and the data output should be on screen. So that's all about this classes and object in Java, how we create the class and object in Java through programs. So I hope you like this video, and some problem, if you have some problem, then you can write in comments also.